You appeared on Shark Tank. I saw that episode. लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में नहीं पता और इसी वजह से बहुत मिस सेलिंग होती है। हम फाउंडर्स ने टोटल अपना जो इंश्योरेंस का 45 इयर्स का एक्सपीरियंस है उसको लेके स्टार्ट किया इंश्योरेंस समाधान। शार्क टैंक हुआ, उसके बाद फिर आपकी कंपनी को क्या बेनिफिट्स मिले? Post Shark Tank, our company grew by 8 to 10 times. But after they saw us on Shark Tank, the trust increased. कंपनीज लाइक पॉलिसी बाजार जो कहती हैं 5,000 रुपये में इंश्योरेंस ले लो 1 करोड़ रुपए का, बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। आई थिंक लोग फटाफट जाके ऑनलाइन उसको परचेज कर लेते हैं। फैमिली में कोई इंश्योरेंस बेचने आया, मैंने ले लिया कि आउट ऑफ ऑब्लिगेशन ले लिया। मैं बैंक में गया, मैनेजर ने बोला इंश्योरेंस शुड नेवर बी बॉट लाइक दैट। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट, इट इज़ अ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर योर फैमिली। हेल्थ इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल। Hello and welcome to this new episode of the Startup Cafe podcast. Today we are meeting Ms. Shilpa Arora. She is the co-founder and COO of Insurance Samadhan, an insurance tech company which has appeared on Shark Tank Season 1. They've already raised a lot of funding. They're doing amazing work in the insurance sector, helping people take care of their grievances related to insurance and bringing transparency to a highly complex and regulated field. So let's dive into her journey and insights and understand where is she going next. Hello Shilpa. Hi. Thank you so much for coming Thank over. you for the invitation. So nice to have you here. Why don't we start with your start of the journey? So I'm Shilpa. I'm co-founder and Chief Operating Officer at Insurance Samadhan. We started the journey in 2018 and it has been now 8 years. Okay. I'm a mother of 2 daughters. One is a psychologist and one is doing engineering. Okay. So Great. that's about me. Great. I saw on your LinkedIn that your practically entire career has been in insurance. तो कहाँ काम किया आपने insurance sector में? इंश्योरेंस सेक्टर में तो ज़्यादा नहीं किया। मैक्स लाइफ इज द ओनली कंपनी वेयर आई वर्कड। Okay. Besides that, I have worked with a lot of Japanese company in terms of training. Okay. So all the Japanese companies who want to come in India, so I consult them. Okay. I help them understand the insurance market and what kind of products are feasible in the market. So that I have done. Okay. Besides that, I have worked in pharma industry where I worked with corporates to reduce their claims. Corporates' biggest problem is that claims are higher, so every year the premium of insurance increases. So I conduct wellness programs so that the claim ratio becomes lower. Okay. तो इंश्योरेंस समाधान का आइडिया कहाँ से आया? इंश्योरेंस समाधान का आइडिया आया था, वी वर वर्किंग इन सीपी ब्रांच, दीपक, मी एंड शैलेश. So CP being the major branch of Max Life, a lot of customer would walk in with their problems और हम उसको resolve करते थे. So one day a crime branch officer walked in with 38 policies and 60 lakhs of premium जो उनके father को missold हुआ था. All he could do was to arrest this seller, but money was gone. So we started helping him and within 6 months we could get all the money back. Okay, is it? All the money you got back? Yes. Okay. So at that time we realized that if a crime branch officer cannot solve the problem for himself, then common people are into problems. So that's what triggered Insurance Samadhan. We all resigned Okay. in 2018 and started Insurance Samadhan. तो शुरुआत कैसे हुई? फिर आप लोगों ने छोड़ा, then you So we left our thought corporate about the job. solution. Yeah, Well- we left our jobs and started solving little. Earlier it was all files. We used to get all the policies, study, handwritten, letters to the insurance company, and we would solve. We got a Renbaxi CEO also who was missold initially, and we got his money back. So that's how the journey began, and now it is completely tech driven. तो क्या solution क्या बनाया आपने? ऐप बनाया है? You made an app. So we have this, we have a technology wherein if you put your complaint, it will analyze whether the complaint is genuine or not genuine. Because insurance, there may be ingenuine complaint where people are doing fraud with the insurance company. So we only take genuine complaints. So there are certain parameters based on which the algorithm works. So you upload the complaint, it will analyze, it will help you get the draft also. So 30 to 60% cases are auto movement. Like you put the complaint, it's like an ATM machine. You put the complaint, you get the draft.
Okay. which needs to be sent to the insurance company. Okay. You send it to the insurance company. If not resolved, then it moves to ombudsman. So again, the draft is auto generated. Okay. So that kind of system we have developed. Okay. So I want to understand this complaint. So for example, if I have some query or some concerns, I'll go and put up all the details, including my the player from which I bought and number and all that Yeah. detail. So do you also have an integration with the insurance company? Otherwise, how would you get the information No, so we have on this- that particular product? So we have an app called Polyfix. You upload your complaint there. Hmm. So we have this OCR technology and AI already inbuilt. So we read your policy. Okay. So whatever information is needed, say for example, if it is a mis-selling, then we will read all the financial information that you have given, all the medical information, and will match Okay. with your complaint. There are certain parameters, as I said, that which can count for mis-selling. So accordingly, we will accept the case. Hmm. Similarly, in health, we read your health insurance, Hmm. we read your discharge summary, we read your bills. Okay. And through that, we understand whether the complaint is genuine or not. So if there Okay. is a pre-existing disease already which is not disclosed, Okay. then we cannot help. So there are parameters for every complaint which the system screens. Okay. And I think a lot of it is already mentioned in TNC. It's just that common people skip to Yeah, go they through don't the final understand. So lines, we right? have this feature called Know Your Policy. You upload the policy Hmm. and you understand your product in very simple language. Like domiciliary treatment, which is home-based treatment. People don't understand what domiciliary means. So we say home-based treatment. Hmm. Okay, so we have broken down into simple terms so that the person can understand. Hmm. तो इंश्योरेंस समाधान को अगर आप एक लाइन में डिस्क्राइब करें, दिस इज अ प्लेटफॉर्म फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल. इज दैट हाउ यू डिफाइन इट? I would say we are into the ecosystem to build trust in insurance because Okay. we, from being from an insurance industry, we feel insurance is the backbone of any family or the country. Because one hospitalization, as it is said, can wipe out your entire saving and take you down Yes, agreed. to the poverty line. So it's better to have this. So we are trying to build trust into the ecosystem. So we are talking to the insurance companies, we are talking to the ombudsman body, we are sending information, we are trying to share whatever we are gathering to them so that the system can improve. ओके. तो आपका बिजनेस मॉडल क्या है इसमें? हाउ डू यू मेक मनी इन इंश्योरेंस समाधान? So currently we are charging success fee basis. ओके. So we, if we solve your complaint, when you get the money, we charge 18% plus GST as of now. We also have Know Your Policy. So if you want to know about your policy, we charge 199. You upload the policy, we'll simplify the policy. We also have another product called as reimbursement filing because most people do not know how to file reimbursement. If a Okay. cashless is rejected or there is a pre and post hospitalization bills, people just keep it, they don't know how to do it. So we charge 799 and we'll do everything for you. Okay. These are the three things that Okay. generate revenue for us. So common sense also tells me that if not today, then tomorrow you would also want to start selling insurance on the Not at platform. all. That You don't want to do that? we don't want to sell insurance Hmm. because then you are not in the you can't build the trust because then you have pressure of targets. Then you will fall in the same trap where Same everybody else trap, is. And then yes. how will you resolve those problems which Yes, you're trying to solve, yes. right? So we are trying to solve and bring trust. We are not going to sell. Okay. Selling brings targets. Hmm. Then So, you can't be. do you think that this is a big enough addressable market? Do you think you would be able to drive the kind of revenues that you're eyeing through only these services? Yes. Okay. So with this 100% FDI coming in the new bill, a lot of insurance companies are going to come. The penetration is going to increase. People will have disputes. Disputes will be there because there are three entities involved. There is a hospital, there is an insurance company, there is a TPA desk. If in case of dispute, a policy holder cannot understand on his own, what to write to the insurer. The policy terms and conditions are complex. The hospitalization discharge summary is complex. So if you look at India, Bharat, not everyone is able to, represent their case well. So this is going to increase and we are seeing that. डिफरेंट क्वेश्चन. आज की डेट में इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें कितने लोग हैं जो इंश्योर्ड हैं? इट्स इजी टू गेस. अर्बन में ज़्यादा होगा, रूरल में नेग्लिजिबल होगा. So government is doing a lot of steps, but
when we go down the level, though the coverage is there, but people are not getting benefit out of Ayushman because hospitals are refusing the treatment because they are not getting the money in time after the treatment. If you look at the coverage, it's still 7-8% of penetration, and You're the talking total pan India, pan including India. everyone. Yeah, because people are not buying. People are more covered under group insurance. They are more covered by government policies. Ayushman and all. But the individual insurance, which is very important, is not there. People are not buying that. If you go into any corporate, they are dependent on corporate policies. And when we question them, that what about your old age? When you leave the organization, so much layoff is happening. If once you are laid off, then where is your insurance? And this is a critical piece. So individual insurance is very less in India. And even if they have it, most of the people are underinsured. And this is when there are so many private and public sector players, and they've been there for years. And we all know in our family there are insurance agents, and Yes. still penetration is so low. 8-9% It's is about the nothing. awareness also. It's about awareness also. It's also about trust, I think, right? Because Yeah, I mean, people- the negative stories are more out there, but Yeah. then there are more positive stories as well. Insurance companies are paying claims, but I think somewhere वो परसेंटेज कितना होगा इंश्योरेंस कंपनीज के पास जो क्लेम आते हैं, कितने परसेंट लोगों को क्लेम मिल जाता so as per the data, 98-99% तो दे ही रहे हैं. है? ओके. But there may be short settlement, or there may be delay, but then they are paying. But वो stories कम है. Rejection, ये ज़्यादा story update कर रही है, which is probably breaching the trust. Okay. So insurance Samadhan, from what you explained, seems like a total online platform, right? Yes. You can only go to insurancesamadhan.com and then explore products or services which are there. Yes. So what kind of customers you get, and from what part of India are you getting most of your customers? So we get from all over India, but predominantly it's Maharashtra, Ahmedabad, UP, Delhi, Okay. Which is more common. Metro cities much more than smaller towns. Smaller towns are more. Smaller towns are more. Smaller towns. As I said, that Bharat hai, so people don't understand what to do. Okay. So, and tell me about the funding thing that has happened with you. You appeared on Shark Tank. I saw that episode. There was some amazing piece of courage that was shown by you and your team, because Piyush Bansal के साथ जिस तरह से आप लोग aggressively negotiate कर रहे थे, that was very interesting to see. But what happened after Shark Tank? So we did meet Piyush, and Okay. he was very much interested in the product because this is tech driven everything, and he was interested in technology company, but he was too busy with the US expansion at that point of time. For Lenskart. For Lenskart. Okay. And it was very difficult for him to catch up with us, and because of Shark Tank, we got funding from IFL by that time. Okay. And the valuation was 3 times higher than what we had committed Piyush. So Piyush understood that part, and he then said, okay, then since you are getting a better investment opportunity, you go ahead. Just want to understand कि जो Shark Tank हुआ उसके बाद फिर आपकी कंपनी को क्या benefits मिले? Post Shark Tank, our company grew by 8 to 10 times. We are operating in trust deficit market, जहाँ पे mis-selling हो गया है, claim rejection हो गया. Now these people are looking for solution. So to ask for documents, because documents तो हमें चाहिए, policy document चाहिए, discharge summary चाहिए, bills चाहिए. So it was not easy before Shark Tank. But after they saw us on Shark Tank, the trust increased, and we started getting so many calls. So on the day of telecast only, if you would have seen the episode, within 2 minutes the number was flashed. Yeah. And we all started getting the calls. So I was at my home, I got the call, and I finished the call at 2 a.m. So many calls came, and we were just talking to them that please give your name and number, we will call back, because so much was the flow. And every team member was occupied. So there were people calling from all over the world, blessing us for this initiative because somebody had faced issues in their family. So, and on 26th January, we had to open the office because the telecast happened on 25th Jan. And 26th, we opened the office, we worked because so much was the call. We had to hire within 10 days. We had to close all the calls quickly. We had to send out messages to the policy holder who had called us that please allow some time to come back to you, because we were not actually prepared for this kind of a scale up.
In fact, we saw the episode after 2 weeks. We did Okay. not get time to see what has been telecasted, because in Shark Tank the pitch is longer. You spend about yeah. hour and a half They pitching, edit that and and then show they the edit and part. show a small portion. So we were not sure what was shown, Okay. but the call flow was huge. तो ये जो आपको फंडिंग मिली, अभी अभी क्या करंट वैल्यूएशन क्या है कंपनी? अभी हम लोग 175 CR पे है. So did Shark Tank help you find these new people who funded you? Yes, yes. Okay. So Shark Tank was the catalyst in your growth story in a big It way. is. In a big way. It's a big way. अच्छा, ये बताइए कि कंपनी को बनाने में शुरुआती दिनों में क्या चैलेंजेस आए, क्योंकि कोई आपके पास प्रेसिडेंट तो था नहीं, आपने एक प्रॉब्लम देखी और उसको नए सिरे से आपने कहा इसको सॉल्व करते हैं, एंड यू हैड नो टेम्पलेट फ्रॉम वेयर यू कुड बोरो. सो Right. व्हाट वर द इनिशियल चैलेंजेस यू फेस्ड? इनिशियल चैलेंजेस तो फर्स्ट तो कस्टमर कैसे लेके आए. सो वी स्टार्टेड फ्रॉम इन अ ऑफिस इन GK. तो जो मेरे को फाउंडर का ही ऑफिस है, वहाँ पे हम लोग रोज बैठते थे. हार्डली कोई कस्टमर होता था. इनिशियली 10 कस्टमर्स अ मंथ. उस पे हम लगे रहते थे कि क्या प्रोसेस होगा. सो वी एक्चुअली क्रैक डाउन द प्रोसेस. फर्स्ट थिंग कि क्या होना चाहिए. सो इफ़ यू लुक एट द GRO, फर्स्ट जो मेल जाना होता है वो GRO को जाना होता है इंश्योरेंस कंपनी के. सो इंश्योरेंस कंपनी के GRO की मेल ढूंढना भी एक टास्क है. इफ़ यू गो टू द वेबसाइट, बहुत छुपा हुआ कहीं पे GRO का आपको मेल ID मिलेगा. व्हाट इज GRO? ग्रीवेंस रिट्रेसल अच्छा, ऑफिसर. ग्रीवेंस रजिस्टर. ओके. सो दैट इज़ अ मैंडेट. आपको वहाँ लिखोगे, उसी के बाद आप आगे प्रोसीड कर सकते हो. सो वो ढूंढना, उसका सिस्टम बनाना, ओम्बड्समैन क्या होता है ये जानना, ओम्बड्समैन में कितना टाइम लगता है, उसका प्रोसेस क्या है, कौन से फॉर्म लगते हैं. बिकॉज ओम्बड्समैन क्या है, पहले आपको एक फॉर्म, कंप्लेंट फॉर्म भरना है. कंप्लेंट फॉर्म भरने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट सब कुछ लगाना है. देन उसके बाद आपको फॉर्म 6 से आएगा. वो आएगा, उसको दोबारा भरना है, फिर से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं. तो थोड़ा सा प्रोसेस वो टीडियस है. ओम्बड्समैन ऑफिस में हियरिंग होती है आफ्टर यू सबमिट 6 से. हियरिंग में इंश्योरेंस कंपनी से ऑपरेशंस या लॉयर आएगा. पॉलिसी होल्डर अकेला खड़ा है. So no third party is allowed to represent in ombudsman. So now this policy holder, we realize कि इसको तो कुछ पता ही नहीं है, ये क्या बोलेगा वहाँ पे. ombudsman तो जज है, और जज के बीच में आपको रिप्रेजेंट करना है. इंश्योरेंस कंपनी अपडेटेड आती है, तो चांसेस ऑफ लूजिंग द केस इज हायर फॉर द पॉलिसी होल्डर. सो वी स्टार्टेड ब्रीफिंग देम. तो हमें उनको कॉल पे समझाना पड़ता है कि आपको क्या बोलना है, कितना बोलना है, बिकॉज टाइम की भी लिमिटेशन है. 2 मिनट 3 मिनट से ज़्यादा आपको बोलने का टाइम नहीं है. अच्छा. उसमें आप इमोशंस नहीं बोल सकते. फैक्ट्स ये नहीं बोल सकते मेरे साथ चोरी कर दिया, ये हो गया, मैं तो गरीब हो गया, ये नहीं. यू हैव टू से द फैक्ट्स विच कैन गेट द विन. सो वो हमें उनको ट्रेन करना पड़ता है. सो ये पूरा जर्नी बना है. इट टुक अस अबाउट 1 year ऑलमोस्ट. नाउ अब हमने 20,000 प्लस केसेस सॉल्व कर दिए हैं इन दिस जर्नी. सो एवरीथिंग इज नाउ इन द सिस्टम. सो फ्रॉम डे 1 वी इंश्योर्ड कि एवरीथिंग इज इन द सिस्टम. तो पुरानी जितनी लीड्स हैं, जो भी सॉल्व हुआ है, कैसे सॉल्व हुआ है, ओम्बड्समैन ने क्या बोला, किस तरह के क्वेश्चंस आए, तो अभी वो एक्सपर्टीज बन चुकी है. कितने साल हो गए इंश्योरेंस समाधान को? 8 years. 8 years. 8 years now. लॉट ऑफ टाइम. अच्छा, जैसे आप ये बता रही हैं, तो ऑब्वियसली कुछ नया बिल्ड कर रहे थे आप लोग, तो शुरुआती दिन तो काफ़ी मुश्किल रहे होंगे. नो क्लियर साइन ऑफ रेवेन्यू एंड देयर इज नो क्लैरिटी कि वो आएगा कहाँ से, कस्टमर कहाँ से आएंगे. तो कभी ऐसा भी लगा कि बहुत डिफ़िकल्ट है यार, इसको क्रैक करना बहुत मुश्किल हो रही है? फ्रॉम द डे 1 हमने एक डिसीजन लिया था कि 5 साल तक एक दूसरे को कुछ नहीं बोलेंगे. अच्छा. एज को फाउंडर्स व्हेन वी रिजाइन, बिकॉज इट वाज अ कॉर्पोरेट जॉब, गुड पेइंग जॉब. फैमिली को भी, दो मेरे पेरेंट्स को तो बहुत डिफिकल्टी आई थी कि पागल हो, मतलब 28 years वर्क करने के बाद आप एकदम छोड़ रहे हो, बच्चे पीक पे हैं, कॉलेज जाना है, फीस जानी है एंड ऑल दैट, शादियाँ होनी है दोनों डॉटर्स की, तुम ऐसे कैसे डिसीजन ले सकते हो. तो वो चैलेंजेस तो थे. जैसे घर में भी लड़ाई होती थी दैट यू नो क्या कर रहे हो, क्या ज़रूरत है ये सब करने की. बट द पर्पस वॉज वेरी क्लियर. मतलब आई वॉन्टेड टू मेक एन इम्पैक्ट. वी वॉन्टेड एक्चुअली टू मेक एन इम्पैक्ट इन दिस सोसाइटी. मनी वॉज नॉट द प्राइमरी ड्राइवर. मनी वॉज नेवर अ प्राइमरी ड्राइवर. सो वी डिसाइडेड कि 5 साल तक तो हम कुछ नहीं बोलेंगे. वी वर नॉट श्योर कैसे जाएगी, बट when the intent is right, when the mission is right, when the purpose is right, I think blessings से ही आप आगे बढ़ जाते हो. COVID happened, we started with mis-selling of life insurance. COVID happened immediately. उसके में इतने सारे डेथ क्लेम्स आ गए हमारे पास, इतने सारे हेल्थ क्लेम रिजेक्शंस आ गए, लोगों को क्लेम डिडक्शन हो रहा था. वी स्टार्टेड हेल्पिंग देम.
तो सडनली एक हेल्थ वाला खुल के आ गया कि हेल्थ में भी इश्यूज हैं, वी नेवर रियलाइज। सो धीरे धीरे वही है कि ब्लेसिंग्स भी लोगों की लगी, विडोज को हमने डेथ क्लेम दिलाए उस टाइम पे, कोविड में बहुत इश्यूज थे। सो एवरीथिंग जस्ट लाइक ओपनड एंड चलता गया ये। तो इस 8 साल की जर्नी में लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट क्या रहा? What would you call the lowest and the highest? लोएस्ट तो हमें कभी लगा नहीं, बिकॉज एवरी मंथ ऐसा होता है कि किसी को हम सॉल्व कर रहे हैं, किसी के घर में डेथ क्लेम दिलवा रहे हैं, किसी कैंसर पेशेंट को उसका क्लेम दिलवा रहे हैं, तो वो अपनी ट्रीटमेंट कंप्लीट कर पा रहा है। तो वो जो कॉल्स होती है ना, वो इटसेल्फ इज़ वेरी मोटिवेटिंग। हाई ये होता है कि जैसे हमने एक बुजुर्ग का केस सॉल्व किया, सो ही वाज सोल्ड 100 पॉलिसीज वर्थ 1 CR एज FDs, और वो जब 3 साल बाद FD अपनी मैच्योर कराने गया तो उसको पता चला ये तो जीरो हो गया, बिकॉज एक एक प्रीमियम दिया हुआ था। इंश्योरेंस में इफ यू आर नॉट पेइंग रेगुलर प्रीमियम यू डोंट गेट, सो 1 crore हैड बिकम जीरो। ही केम टू आवर ऑफिस, ही वाज क्राइंग ओके कि मेरी फैमिली ने मुझे हटा दिया, मेरी फैमिली मुझे गाली दे रही है, मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज़ हेल्प कर पाओगे? नहीं, उसको ट्रस्ट भी नहीं था। बट वो आया, जब हमने उसका सॉल्व करना शुरू किया, इट वाज लाइक इट टुक 1.5 to 2 years, बट वी सॉल्व फॉर हिम। तो वो एक बहुत encouraging था कि एक ओल्ड पर्सन जिसने सब कुछ लूज कर लिया था, ही इज एबल टू रिवाइव हिज लाइफ अगेन। तो ऐसे बहुत स्टोरीज है हमारे पास जो आई एम श्योर जो होती है। एक बच्चे का कैंसर इनिशियली ही था, बच्चे को कैंसर हो गया, क्लेम रिजेक्ट हो गया, पेरेंट्स Tier 2 से Tier 1 दिल्ली में ट्रीटमेंट के लिए आए। जब उसका सॉल्व हुआ तो बच्चे का ट्रीटमेंट आगे बढ़ा। सम पीपल आर नॉट एबल टू अफोर्ड, और कुछ बीमारियां ऐसी है, हार्ट अटैक हुआ है, बाईपास रिक्वायर्ड है, पैसे ही नहीं है, अब घर बेचो, गोल्ड बेचो, जो भी बेचो। सो अब ये थ्रू हो जाते हैं, देन दे आर वेरी हैप्पी। बहुत सारी दुआएं आपको रोज़ मिलती होंगी। वही मैं कह रही हूँ, हम लोग ब्लेसिंग से ही चल रहे हैं आगे। अच्छा, मेरे को थोड़ा सा बिजनेस मॉडल पे और डबल क्लिक करना चाहता हूँ मैं, कि जैसा आपने बताया कि आप सक्सेस फीस पे कुछ परसेंटेज, आई थिंक 18% is what you charge। तो ये जो जर्नी है सक्सेस फीस तक पहुंचने की, इसका टाइम क्या है? जैसे अब मैं आपके पास आया एज अ कंज्यूमर, यू आर नॉट चार्जिंग मी एनीथिंग अप फ्रंट, नो, and if I give you my problem and I tell you that this is what I need you to solve, it may take 3 months, 6 months, I don't know, 1 year. So you will keep serving me till 1 year, till the time Yes. that happens and I get my money? यस यस। सो आवर्स में भी सॉल्व हो जाता है, फर्स्ट मेल पे भी सॉल्व हो जाता है। सो 30% केसेस कंपनी लेवल पे सॉल्व हो जाते हैं, विच इज़ लाइक 30 days to 45 days। Okay. और कुछ आगे जाते हैं ओम्बड्समैन में जो टाइम डिफाइंड है वो है 3 months। बट कुछ आप जैसे देख रहे होगे, ग्रीवेंसेस बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, उतनी तरह से स्टेप अप नहीं हुआ ओम्बड्समैन बॉडी। देयर आर 18 ओम्बड्समैन इन इंडिया, जिसमें सबसे ज़्यादा चोक्ड रहता है अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, पुणे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं, तो वहाँ जो है टाइम ज़्यादा लग रहा है, 6 months to a year भी लग जाता है। Okay. और लास्ट ईयर तो काफ़ी लोकेशन पे ओम्बड्समैन थे ही नहीं, मतलब वैकेंसी थी, टुक टाइम, सो वहाँ और एक्यूमुलेशन हो जाता है। सो थोड़ा सा अभी गवर्नमेंट को भी रैंप अप करना चाहिए विद द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स इंक्रीजिंग, Yeah. कि सिस्टम थोड़ा हमें बढ़ाना चाहिए, वो अभी कम है। चल रहा है धीरे धीरे। हाँ। So ombudsmen, for my knowledge, are those people who are supposed to resolve it from the neutral perspective. They are Yes. like the court judges. सो दे आर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, IAS Retired होते हैं। bureaucrats. Okay. दे They are the decision makers in such cases, and they are Yes. the one who direct insurance companies कि आपको ये करना है। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए कि इंश्योरेंस को लेके एक जो एक पॉपुलर नैरेटिव है, टीवी में ऐड चलती है, लोग कहते हैं देर आर कंपनीज लाइक पॉलिसी बाजार जो कहती हैं 5,000 रुपये में इंश्योरेंस ले लो 1 करोड़ रुपए का, तो बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। आई थिंक लोग फटाफट जाके ऑनलाइन उसको परचेज कर लेते हैं, बट क्या ऐसा करना चाहिए? वो व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू बाय इंश्योरेंस, एंड कैन कॉमन पीपल रियली रीड थ्रू ऑल द 3-4 page terms and condition? What is the best think way to आपको- do this so you don't get into trouble? आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए। इंश्योरेंस शुड नॉट भी, जैसे आपने इनिशियली बोला कि कि ऐड देख के ऐड देख लिया, या मतलब फैमिली में कोई इंश्योरेंस बेचने आया, मैंने ले लिया कि आउट ऑफ ऑब्लिगेशन ले लिया। मैं बैंक में गया,
मैनेजर ने बोला कि आपका इतना अच्छा चल रहा है, मेरा टारगेट रहता है, दीज आर काइंड ऑफ पिचेस Yes. आप आउट ऑफ एम्पैथी दे देते हो कि ठीक है. सो इंश्योरेंस शुड नेवर बी बॉट लाइक दैट. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट. इट इज़ अ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर योर फैमिली. इफ गॉड फॉरबिड समथिंग हैपन्स, आपकी फैमिली का लाइफस्टाइल मेंटेन होगा. दैट इज योर टर्म पॉलिसीज एंड एंडोमेंट जो भी आप खरीदते हो, सम एश्योर्ड उसका. हेल्थ इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल. हेल्थ में आपको देख के प्रोडक्ट लेना पड़ना चाहिए, नॉट बाय प्रीमियम कितना कम है. अगर प्रीमियम कम है तो देयर मे बी अ कोपे कि आपको 20% देना है, 10% देना है. उस टाइम आपको प्रॉब्लम लगेगा. देयर मे बी अ रूम रेंट कैपिंग कि आप 1% ऑफ सम एश्योर्ड ले सकते हो. 5 लाख का सम एश्योर्ड है तो आप 5,000 का रूम ले सकते हो. दिल्ली जैसी सिटी में आपको 5,000 में रूम नहीं मिलेगा. नहीं मिलेगा. आई एग्री. किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में सिमिलरली आईसीयू पे लिमिट लगी हो सकती है. देयर मे बी सब लिमिट ऑन मॉडर्न थेरेपी. अब ये भी लोगों को नहीं पता, मॉडर्न थेरेपी के अंदर आपकी रोबोटिक सर्जरीज आती है. जिस तरह से मेडिकल एडवांसमेंट हो रही है, रोबोटिक सर्जरी इंपॉर्टेंट हो जाएगी. लाइक कैंसर में भी रेडिएशन इज वाया रोबोटिक्स. यू कैन गो नॉर्मल रेडिएशन जिसमें पूरा आपका एक्सपोजर होगा, डैमेज ज़्यादा होता है. रोबोटिक में जाते हैं तो वो प्रिसीजन रेडिएशन होता है, किलिंग द कैंसर सेल्स. If I have a limit, I may have a 10 lakh policy, but I may have a limit of 2 lakh. But ये one robotic जो साइबर नाइफ कहते हैं, it cost about 2 lakh per session, 5 sessions लगते हैं. Similarly, immunotherapy is also under modern therapy. So अगर वहाँ पे भी 2 लाख की लिमिट लगी हुई है, एक इम्यूनोथेरेपी 2 से 2.5 लाख की पड़ती है. So आपके नंबर ऑफ इम्यूनोथेरेपी आप कैसे करोगे? So ये चीज़ें जो है वो आपको कोई, या तो आप पढ़े अच्छे से, डिसीजन लो, पॉलिसी बाजार में भी आराम से बात करके डिसीजन ले कि क्या कवरेजेस है, उसके लिए अवेयरनेस ज़रूरी है. अदरवाइज एनी सीजन एडवाइजर कैन हेल्प. तो इंश्योरेंस आप ये कह रही हैं कि इमोशनल होके मत खरीदिए, सोच समझ के उसको पढ़िए अच्छे से. अवेयरनेस, अभी आप देखेंगे इंश्योरेंस का जो न्यू बिल पास हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा फंड गवर्नमेंट ने अवेयरनेस पे डाला है. बिकॉज मेजर प्रॉब्लम इंडिया में अवेयरनेस है. हम इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की तरह ले रहे हैं. करेक्ट, आई एग्री. उसको पेंशन से जोड़ देते हैं, उसको कैशबैक से जोड़ देते हैं, उसको कैशबैक से जोड़ देते हैं, उसको रिटर्न्स बताते हैं, एफडी बताते हैं. क्योंकि हमें बेचा ही उस तरह से जाता है ना. वी डोंट नो. बिकॉज हमारा माइंडसेट वैसा है ना, हम उसको एज अ प्रोटेक्शन टूल नहीं ले रहे. अवेयरनेस क्योंकि कोई भी इंसान ये नहीं समझता कि डेथ कभी भी हो सकती है, बीमारी कभी भी आ सकती है. व्हेन वी इंटरेक्ट विद पीपल, लोग कहते हैं मैं तो ठीक हूँ, हेल्दी हूँ, अभी मुझे हेल्थ इंश्योरेंस कब लेना चाहिए? तो इंश्योरेंस तो लेना ही तब चाहिए जब आप हेल्दी हो. अगर आपकी हेल्थ खराब हो गई तो इंश्योरेंस मिलेगा ही नहीं. और अगर आप डिस्क्लोज करके इंश्योरेंस नहीं लोगे तो आपका क्लेम रिजेक्ट होगा ही. क्योंकि अभी तो मैंने इंश्योरेंस खरीद लिया झूठ बोल के, लेकिन डॉक्टर को तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी ना. जब हॉस्पिटल जाऊंगी मैं बताऊंगी मेरे को डायबिटीज थी 5 साल से, मेरा ये भी हुआ हुआ, ये वाली सर्जरी हुई हुई है, वो सब रिकॉर्ड पे आ जाएगा. क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा. And I was reading somewhere that government is also creating a place where all the medical records, health records of everyone. आभा आईडी जो क्रिएट कर रहे हैं, सो आभा आईडी से आपका सारा रिकॉर्ड, मेडिकल रिकॉर्ड्स सारे स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे. हाँ. उसमें उसको घुमाने का सिस्टम समाप्त हो जाएगा. समाप्त हो जाएगा. वो कब तक यू थिंक दैट विल बी वो तो लॉन्च्ड? हो ही रहा है. हो रहा है, शुरू हो कोई गया. भी अब अगर आपका कोई भी हॉस्पिटल विजिट होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी आभा आईडी बन जाएगी. Is it? It's automatically happening now. It's happening. So can you go and check for yourself? Can I go and check my Aabha ID and see if I went to like 5 hospitals in last 1 year, whatever has अभी been the वो दिख treatment? नहीं Can I रहा. check? अभी वो दिख अभी नहीं नहीं. रहा. अच्छा, but eventually आ जाएगा. Eventually तो आएगा. जैसे पैन कार्ड है, पैन कार्ड will tell you what you've been doing for years. Yes. Similarly, this ID will tell you what your health situation and your actions have been, right? Absolutely, because that is the driver for country also. आप कैसे पॉलिसी बनाओगे जब मुझे अपने सिटीजन्स की हेल्थ कंडीशंस ही नहीं पता? दैट इज अ ड्राइवर. तो आज की डेट में जैसे आपने बोला कि इंश्योरेंस लोग ले लेते हैं और उनको कई बार क्लैरिटी नहीं होती, तो उसमें भी इंश्योरेंस समाधान हेल्प करता है. आई कैन गो टू इंश्योरेंस समाधान एंड अपलोड माई पॉलिसी एंड सो वी हैव दिस नो योर पॉलिसी. इसमें अगर आप अपलोड करते हैं पॉलिसी तो वो ब्रेकअप बता देगा आपको कि आपके पास क्या रूम रेंट कैपिंग लगी हुई है, क्या सब लिमिट लगी हुई है, कोई कोपे है, आपका वेटिंग पीरियड क्या है. देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड एज मोरेटोरियम पीरियड जो लोगों को नहीं पता. सो अगर आपकी पॉलिसी 5 साल तक चल गई है इंश्योरेंस हेल्थ, तो आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं हो सकता.
सो लोगों को पता नहीं, वो पोर्ट के नाम पे नई पॉलिसी ले लेते हैं, तो क्या होता है वो मोरेटोरियम पीरियड खत्म हो गया, तो हम अच्छा। आपको बता देंगे कि आपका मोरेटोरियम पीरियड ओवर हो गया, हम्म। अब इस पॉलिसी को आप कंटिन्यू करिए। ओके। और अगर आप पोर्ट कर रहे हो तो इंश्योर कि वो पोर्टेबिलिटी हो, क्योंकि पोर्टेबिलिटी में आप मोरेटोरियम पीरियड कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लेकिन अभी क्या हो रहा है, क्योंकि प्रीमियम इतनी जोरों से बढ़ रहे हैं हेल्थ में, लोग ऑनलाइन कुछ भी खरीद रहे हैं। करेक्ट। मुझे दिखा ये सस्ता है, मैंने ले लिया और पिछली डिसकंटिन्यू कर दी, सो आई लूज माई वेटिंग पीरियड का बेनिफिट, आई लूज माई मोरेटोरियम पीरियड का बेनिफिट। बट ये बताइए मेरे को कि ये जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, पॉलिसी बाजार जैसे, एक तो इतने बड़े फंडेड प्लेटफॉर्म है जिन पे लोग ट्रस्ट करते हैं, दूसरा एक तरफ IRDA है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी है, तो ये बड़े प्लेटफॉर्म्स जो मार्केट के लीडर्स हैं और ये जो अथॉरिटी है, ये मिल के इस एजुकेशन को लार्ज स्केल पे अच्छे से ड्राइव क्यों नहीं करते? ऐसे प्रोडक्ट बेच भी तो वही रहे हैं ना, लोग खरीद क्यों रहे हैं? वो आप एडवर्टाइज कर रहे हो, आप क्लैरिटी से इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, आप उसके जो नेगेटिव साइड्स हैं उस पॉलिसी के वो तो आप बता नहीं रहे हो, तो आम आदमी तो बताते हैं। सो पॉलिसी बाजार में आप जाएंगे तो आपको कॉल भी आएगी एंड दे विल आल्सो शो यू द प्रोडक्ट, Okay. कंपैरिजन भी देंगे आपको अच्छे से। बट वही है कि हम जल्दबाजी में हैं, सो वी आर नॉट, यू सेइंग वी आर नॉट पेइंग एनफ अटेंशन। वी आर नॉट पेइंग अटेंशन। हमें लगता है कि यार हेल्थ इंश्योरेंस किसी ने बोला चलो 10 लाख का ले लेते हैं, और मैं ले लिया। अब मैं इस Without assumption में हूँ कि realizing- मैं कुछ बीमार पड़ूंगा तो 10 लाख मिल जाएंगे। हाँ, मैंने तो कई लोगों से ऐसे बात की, वो कहते हैं हम तो रोबोट से सर्जरी नहीं कराएंगे। अरे वो रोबोटिक सर्जरी डज नॉट मीन कि डॉक्टर नहीं करेगा। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो इंटरेक्शन में शायद हम पॉलिसी होल्डर को क्लैरिफाई करें। एज ए सेड कि भारत है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अर्बन ओनली, देयर इज अ Yes. ह्यूज बेल्ट जो Absolutely, उनसे बात करना पड़ता है। तो इंश्योरेंस समाधान इस अवेयरनेस को ड्राइव करने के लिए क्या कर रहा है? आप किस तरह के एक्टिविटीज़ करती हैं या इनिशिएटिव्स लेते हैं आप लोग? तो जैसे हमने नो योर पॉलिसी बनाया, वो इजी किया। रेगुलरली कंटेंट हम डालते हैं, रील्स बनाते हैं एवरी डे, लिंक्डइन पे कंटेंट डालते हैं जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी होती है। सो आई गो टू कॉलेजेस, बच्चों से ही एजुकेशन स्प्रेड होती है, घर पे भी पता चलता है। सो वेर एवर द अपॉर्चुनिटी कम्स आई गो एंड वी टॉक अबाउट इंश्योरेंस की व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ टेकिंग इंश्योरेंस। वी मीट एवरीवन, इंश्योरेंस कंपनी में भी जाते हैं, CEOs वगैरह से मिलते हैं, एंड वी टेल देम दैट दीज आर द प्रॉब्लम दैट वी सी, इफ यू कैन फाइंड सॉल्यूशंस। तो अल्टीमेटली वी वांट टू रीच आउट टू इंश्योरेंस कंपनीज एंड गिव देम फीडबैक कि आपकी ये कंप्लेंट्स आ रही हैं, इसको आप कैसे चेंज कर सकते हो सिनेरियो को। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आपके हिसाब से इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ अवेयरनेस बाय द बायर्स, और देयर आर अदर प्रॉब्लम्स एज वेल? बायर का तो है ही प्रॉब्लम, वो मुझे लगता है सॉल्व करना भी मुश्किल है, क्योंकि वी कांट एक्सपेक्ट अ पर्सन टू रिमेंबर एवरीथिंग अबाउट इंश्योरेंस, Correct. बिकॉज इंश्योरेंस मैंने आज खरीदा, मेरा क्लेम तो 10 साल बाद 15 साल बाद भी आ कहीं सकता है। ना कहीं टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल रहता ही नहीं है वंस यू हाँ, बाय दैट। इट्स हाँ। अनलाइक लेट्स से फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट विच अबाउट विच यू आर ऑलवेज थिंकिंग कि मेरा पैसा कितना बढ़ा, यू आर ऑलवेज गोइंग एंड चेकिंग। यू डोंट डू द सेम व्हेन यू बाय लाइफ और टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस, राइट? यू बाय एंड यू फॉरगेट इट्स फाइल्ड। दूसरा क्या है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो चल रही है वो अब जैसे AI आ गया, बहुत ज़्यादा प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन ओरिएंटेड है। तो वो जो ह्यूमन टच, एम्पैथी कि हॉस्पिटल में हो क्या रहा है उस पेशेंट के साथ, वो नहीं हो रहा। आप डॉक्यूमेंट भेजते हो, वहाँ से रिजेक्शन लेटर आ जाता है। अब रिजेक्शन लेटर में लिखा है कस्टमरी एंड रीजनेबल। अब ये क्या होता है? एज ए पॉलिसी होल्डर मुझे तो नहीं पता ना क्या लिख के दे दिया। तो वो सिंप्लीफिकेशन नहीं है। हॉस्पिटलाइजेशन नॉट रिक्वायर्ड बोल दिया। अब किस पैरामीटर पे आप उसको बोल रहे हो कि भाई तेरा हॉस्पिटलाइजेशन जस्टिफाइड नहीं है, मैंने क्लेम रिजेक्ट कर दिया। ये लिख देते फ्रॉडुलेंट क्लेम। वो पॉलिसी होल्डर पर मैंने क्या फ्रॉड कर दिया? आपका नेटवर्क हॉस्पिटल के साथ में गया, आप हॉस्पिटल को क्वेश्चन करो कि क्या डॉक्यूमेंट है। अब हॉस्पिटल में क्या हो रहा है कि डिस्चार्ज समरी एक जूनियर डॉक्टर बना रहा है, सीनियर बिजी है, डिस्चार्ज जब बनता है जल्दबाजी में वो उसने लिख दिया हाइपरटेंशन फ्रॉम लास्ट 10 years, हाइपरटेंशन 2 साल से था, डिक्लेयर्ड था, अब 10 साल लिख दिया, क्लेम रिजेक्ट हो गया। अब इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट रेडी टू नाउ चेंज। तो ऐसे They सारे stand. केसेस में लोग आपके पास आ सकते हैं, यू विल बी एबल टू हेल्प देम? हाँ, ऐसे केसेस में हम हेल्प करते हैं, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वेदर हॉस्पिटलाइजेशन वाज जस्टिफाइड और नॉट, क्योंकि फिर हम उसके अंदर जाते हैं। ये जो मिस सेलिंग है इसको कैसे रोक सकते हैं? क्या करना चाहिए? कैसे रुकेगी ये मिस सेलिंग? ये तो मिस सेलिंग होती ही है। लोग अपने लिए जो एज अ सेलर जो उनके लिए बेनिफिशियल पॉलिसीज़ हैं
उसको बेच देते हैं। एक तो कंपनीज ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हैं जो कंज्यूमर फ्रेंडली इतना ज़्यादा नहीं है, वो लॉन्च हुए जा रहे हैं डिस्पाइट ऑल दीज रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। लोग बेच रहे हैं और सामने वाला खरीद रहा है क्योंकि वो ऑब्लिगेशन में है। आई इस थिंक प्रॉब्लम को, इस चेन को कैसे ठीक रेगुलेशन कर अब सकते जिस हैं? तरह से आ रही है, जैसे अभी आरबीआई ने भी रेज किया लास्ट वीक। आरबीआई ने बोला कि मिस सेलिंग बैंक में अगर होगी तो बैंक इज नाउ अकाउंटेबल, दे हैव टू रिफंड द मनी। ओके। और नीड बेस्ड होना चाहिए। सो इंश्योरेंस हमेशा नीड बेस्ड बेचा जाता है, बट ये प्रैक्टिकली हो नहीं रहा। एक नीड एनालिसिस फॉर्म होता है कि आपकी एज कितनी है, कितने टाइम तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। से आई एम 30 ईयर्स, 60 ईयर्स इज माई अर्निंग एज, तो मैं 30 ईयर्स का कवरेज लूंगी ताकि अगर मुझे इन बिटवीन कुछ हो जाए तो मेरी फैमिली को उतना पैसा मिल जाए जितना मैं कमा रही हूँ, ताकि लाइफस्टाइल मेंटेन हो या मेरी कोई लाइबिलिटीज़ हैं वो कवर हो जाए। बट ऐसे बेचा नहीं जा रहा। सीनियर सिटीजन जो 70 साल के हो गए उनको आपने बेच दिया, तो वो नीड बेस्ड नहीं है। क्यों बेच रहे हो? इक्विटी क्यों एक सीनियर सिटीजन को यूलिप इक्विटी में दे रहे हो? नॉनसेंस। हाँ, सो अभी आरबीआई ने भी बोल दिया कि यू आर अकाउंटेबल। अब वो नीड बेस्ड होगा। इवन इफ देयर इज अ कंसेंट तो सेलर इज अकाउंटेबल। अगर उसने किसी सीनियर सिटीजन या किसी ने भी बैंक में रेज कर दिया मिस सेलिंग का कि मेरे साथ मिस सेलिंग हुई है, नाउ सेलर इज अकाउंटेबल टू प्रूव कि नहीं मैंने मिस सेलिंग नहीं आई किया। थिंक इस मिस सेलिंग के कॉन्सेप्ट पे गवर्नमेंट को एक क्लियर गाइडलाइंस फॉर्म करनी चाहिए ताकि आई थिंक लोगों को भी। गवर्नमेंट बहुत कर रही है। 24 में आईआरडीए ने भी काफ़ी रेगुलेशन निकाला इसको लेके। दे आर स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग इट, और ये तो सॉल्व करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। फॉरवर्ड मिस सेलिंग तो। अच्छा, आपको ऐसा लगता है, आप इतने सालों से जुड़ी हैं इंश्योरेंस सेक्टर से, तो इनफैक्ट 8 साल से कंपनी चल रही है, तो आपको लगता है कंज्यूमर का बिहेवियर भी चेंज हुआ है आज की डेट में? पहले जैसे कंज्यूमर करते थे और अब थोड़ा। देखो, अवेयरनेस तो बढ़ी है, हम्म, लेकिन क्या है, चैट जीपीटी से भी पूछ रहे हैं, अपने भी आप रिसर्च कर रहे हैं। अभी फिर भी क्वेश्चनिंग मिसिंग है। चैट जीपीटी ने बोल दिया या ऑनलाइन देख लिया ये सस्ता है, जैसे मैंने बोला प्रीमियम सस्ता है। हमारे पेरेंट्स ने बोला अरे यार 70,000 का प्रीमियम हो गया। ऑनलाइन गई, किसका कम है, वो ले लिया। उसके अंदर की जो टेक्निकल टर्म्स है वो मैंने समझने की कोशिश नहीं की, तो वो एक गैप आ रहा है। बट बेटर हुआ है पहले से। अवेयरनेस तो बेटर हुई है। अवेयरनेस तो जेंजी तो क्वेश्चन कर रहे हैं कि, आई थिंक जेंजी आर आल्सो बाइंग टर्म इंश्योरेंस। दे अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ टर्म इंश्योरेंस, अनलाइक आवर जनरेशन जो बोलती थी यू नो कि टर्म लेना ही क्यों है, मुझे वापस तो कुछ नहीं मिल रहा। वी नेवर अंडरस्टूड कि प्रोटेक्शन इज इम्पॉर्टेंट। हमें होता था कि पैसा दिया या तो मनी बैक दे दो या रिटर्न दे दो। एंड वी नेवर अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ ऑल्सो, वी ऑलवेज थॉट समबडी एल्स विल डाई, नॉट मी। वो तो अभी भी है। अच्छा, ये जो टेक्नोलॉजी की जो वेव है और एआई की जो वेव आ रही है और बहुत हद तक एंटर कर गई है हमारे सबके घरों में और कंपनीज़ में, इससे क्या चेंज आपको लगता है आने वाले टाइम में इंश्योरेंस सेक्टर में आएगा? इस इंश्योरेंस में अभी भी एम्पैथी रिक्वायर्ड है। यू कांट बी, एआई से आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, ह्यूमन टच चाहिए। यूएस में हुआ है ये रिप्लेसमेंट क्लेम के टाइम। लास्ट ईयर शूट भी कर दिया था जिसका क्लेम डिनाई हुआ था, बहुत बड़ा न्यूज़ बना था। यस, आई हर्ड हाँ। दैट। यस। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि इस डायरेक्शन में हम ना चले जाए जहाँ पे एम्पैथी मिसिंग हो और एआई ही आपके हर काम क्लेम चैटबॉट सॉल्व। ही कर रहा है। हाँ, बिकॉज समवेयर वी नीड टू टॉक। कई बार फ्रस्ट्रेटेड हम हो जाते हैं कि एक कॉल मुझे भी पता है कि एआई के थ्रू हैंडल हो रही है, वी डोंट वांट टू टॉक, वी नीड दैट ह्यूमन। और यहाँ पे तो हॉस्पिटलाइजेशन है, यहाँ पे तो डेथ हुई है, तो वो एम्पैथी थोड़ी, मतलब इट हैज़ टू बी अ मिक्स ऑफ एआई एंड ह्यूमन इंश्योरेंस में, अभी मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, एक बात बताइए, फॉर पीपल हु आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट, फॉर समवन हु इज़ इन द एज ग्रुप ऑफ 30 to 35, वर्किंग फॉर अ कंपनी और सेल्फ एम्प्लॉयड, हैज़ अ न्यूक्लियर फैमिली, क्या क्या इंश्योरेंस होने चाहिए उसके पास? सबसे पहले टर्म लेंगे। टर्म आपका 20 मिनिमम टाइम्स, कितने अमाउंट का होना चाहिए टर्म 20 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम। ओके। सो वट एवर इज योर एनुअल इनकम, 10 लाख रुपए है तो आप 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट टेक, ठीक है। फॉलोड बाय हेल्थ। ओके। हेल्थ का क्या आइडियल अमाउंट होना चाहिए? आइडल जैसे मेट्रो में आई वुड ऑलवेज से 10 to 15 आपका बेस पॉलिसी होना चाहिए। ठीक है। सो दे आर 2 थिंग्स, बेस पॉलिसी लो एंड फिर टॉपअप लो। ओके। टॉपअप इज आपका 25 to 50 lakhs का आप टॉपअप ले लीजिए। ठीक है। सो बेस पॉलिसी कवर करती है नॉर्मल कंडीशंस, जैसे नी रिप्लेसमेंट हो गया, कुछ हर्निया हो गया, फीवर रिलेटेड, सो इसके बिल आपके 2 से 10 लाख के बीच में चलेगा। ठीक है। लेकिन
भगवान न करे कैंसर आ गया लाइफ थ्रेटनिंग कोई डिजीज आ गई तो बहुत तो फिर प्रॉब्लम है। बड़ी सो problem। कैंसर अगर आ गया तो कैंसर की तो फर्स्ट सर्जरी 7 से 10 लाख की होती है, देन कीमो है, इम्यूनोथेरेपी है, रेडिएशंस है, तो एक जो बिल है वो 30 to 50 lakhs तक चला जाता है। हम्म सो यू शुड हैव अ बेस पॉलिसी एंड अ टॉप अप प्लान। व्हाई आई एम सेइंग बेस पॉलिसी महंगी होती है, हम्म टॉप अप में क्या होता है, डिडक्टेबल अप्लाई होता है। हम्म सो बेस पॉलिसी को आप डिडक्टेबल ले सकते हो, जैसे मेरे पास सपोज बेस पॉलिसी 10 लाख की है तो 10 लाख की डिडक्टेबल को लगा के मैं एक टॉप अप ले लेती हूँ तो मेरा प्रीमियम बहुत कम हो जाता है। बेस पॉलिसी आपकी 10 लाख की से अगर 25 से 30 हज़ार या 35 हज़ार की होगी तो मेरा टॉप अप 5 से 6 हज़ार का होगा, बट दैट विल गिव यू अ ब्रॉडर कवरेज। कवरेज या सो एक आपने कहा टर्म इंश्योरेंस, एक बोला हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में भी बेस पॉलिसी एंड टॉप अप दोनों, सुपर टॉप अप ले लो। मैंडेटरी ये तो है ही, इसके अलावा और भी कुछ? इसके अलावा फिर आप जो मर्जी लीजिए, एंडोमेंट लीजिए अगर यू उसके वांट बाद टू फिर आप प्रोटेक्ट, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको लगता है तो ले आप सकते हैं। हाँ यूनिट लिंक प्रोडक्ट लीजिए जो भी आपको बट लाइफ गोल। यूनिट लिंक्ड प्रोडक्ट जिनका लाइफ इंश्योरेंस से लिंकेज है वो लेना बेटर है, या अगर आपको सीधा यूनिट लिंक्ड ही लेना है तो आप सीधा म्यूचुअल फंड या उस तरफ जाएं? विच वन इज बेटर? सो यूनिट लिंक में आपका सम एश्योर्ड रहता है। सो अगर मेरे इंपॉर्टेंट गोल्स है, जैसे बच्चे की एजुकेशन है, मैरिज भी पहले होता था, अभी आजकल तो बच्चे खुद कर लेते हैं, बट मेरा अगर एजुकेशन गोल है तो म्यूचुअल फंड के थ्रू आई मे नॉट बी एबल टू रीच, क्योंकि ये क्या है, मैं हूँ या ना हूँ, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। करेक्ट। तो इफ़ आई हैव अ सम एश्योर्ड की 20-25 लाख का मेरा सम एश्योर्ड पड़ा हुआ है तो मैं हूँ या ना हूँ बच्चे को उतना पैसा मिल जाएगा। सो इट हैज़ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट बोथ। If I fail, then the policy will take care. Now, one mistake people should never make while buying a policy. Just signing the proposal form and giving the check. So when somebody comes and gives you those documents, आप उसको read it through and then read it नहीं, आप खुद भरिए, खुद भरिए। ओके। फाइनेंशियल्स खुद भरिए, हेल्थ कंडीशन सब डिक्लेयर करिए। कोई पुरानी पॉलिसी अगर आपके पास है वो मिस हो जाती है, लोग भरते नहीं है, वो ज़रूरी है। बिकॉज जैसे मैंने बोला ना, इंश्योरेंस का एक फॉर्मूला है, 20 to 30 टाइम्स ही आप ले सकते हो, उसके बियॉन्ड लोगे तो सारा रिजेक्शन में आ सकता है कि आप जस्टिफाई नहीं किया आपने। यू कैन नॉट गो अहेड एंड बाय 100 करोड़ जब मेरी इनकम ही 10 लाख है, तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा इंश्योरेंस लेते हुए। अच्छा। सो पुरानी पॉलिसीज़ को भी एडअप करते हैं कि पुरानी पॉलिसीज़ में कितना सम एश्योर्ड है, और अगर आपने वो मिस कर दिया तो आपका क्लेम फिर रिजेक्ट हो जाएगा। One mistake people should never make during filling a claim form. अगेन मतलब खुद ही भरिए, और अगर आपको एडवाइजर बोल भी रहा है कि मत लिखो हाइपरटेंशन, कोई बात नहीं, मैं हूँ, मैं हूँ, डोंट ट्रस्ट, जो है वो भरिए। आपको फिर Transparently. कॉल आती है, उसको अगर कॉल पे भी बता दीजिए, और जब पॉलिसी डॉक्यूमेंट आए प्लीज़ चेक कि जो आपने लिखा था वो भरा हुआ है वहाँ पे या नहीं। शिल्पा जी, इंश्योरेंस समाधान के बारे में बताइए मेरे को कि अब क्या विजन है आपका नेक्स्ट 3 to 5 years, वेयर यू सी दिस कंपनी गोइंग? सो आई वांट एवरी पॉलिसी होल्डर टू हैव आवर ऐप पॉलिफिक्स, जहाँ पे वो अपनी पॉलिसीज़ को रखे, चेक करे, क्लेम फाइल वहीं से करे, अपनी फैमिली के साथ भी उसको शेयर करे। सो दैट इज़ माई विजन, एवरी इंडियन शुड हैव पॉलिफिक्स इन देयर फोन। एंड टेल मी one quote that you never forget, which has always stayed with you. So the kind of life अभी चल रही है, आई एम अ स्टार्टअप फाउंडर, माय मदर इज स्टेज 4 कैंसर Oh, patient, so I am in that situation that control the controllables okay. is something that, you know, I'm looking at right now at this stage of life. Okay. I wish her well. I wish her Thank you. quick recovery. And is there a book that has influenced your thinking? Do you read books? Yeah. So, Almanac of Naval Ravikant is very close to me because the way Okay. he looks at life Yeah. is something which is very Unique perspective. unique yes. for a founder like us who goes up and down in life. Yeah, He keeps us focused. Yeah. absolutely. One business leader or ideal you look up to? I think Naval, Naval only? yeah, I really like his podcast. He's a genius. He's very good. Now, one suggestion for upcoming entrepreneurs. You are a startup founder yourself and you've scaled it. You spent considerable time. You went to Shark Tank. You got funding.
it's a very decent valuation that your company has right now. It's growing. So somebody who's looking at you and thinking you are ahead of them in this journey, what would you want to tell them? So I think doing the right thing is important when nobody is watching you, even if it is very tough. Hmm. So we have learned that in this journey that if you are in the right space, right, doing the right things, then success will follow. You have to keep moving. You have to keep moving. As I said that we initially when we said we decided 5 years तक एक दूसरे को कुछ नहीं बोलेंगे. This journey is really hard. अब तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है. अब तो बोलने की जरूरत नहीं है बट वो फिक्स करना जरूरी था. Correct, You know correct. that time frame that. बट उसके काफ़ी पहले ही चीज़ें ठीक हो गई होंगी ना. नहीं उतना नहीं wait इतना तो नहीं इजी करना पड़ा था. नहीं नहीं इतना इजी नहीं होता. स्टार्टअप जर्नी नॉट इजी. तो टाइम लगा 5 साल लग गए. अभी भी लग रहा है, अभी ऐसा भी लग नहीं रहा है. यू गेट दैट Tough days still come. टफ डेज स्टिल होता है, बिल्कुल होता है. चलता रहता है. आई एम ऑल्सो फाउंडर, आई नो. हाँ, और वी आर इन द स्पेस वेयर इंश्योरेंस में सेंटर में बैठे हुए हैं तो. Yeah. So that was Shilpa Arora. What a wonderful chat we had, and we learned a lot from her. Thank you so much, Shilpa ji, Thank you so for much. coming. It's such a Thank pleasure. you. I Same wish here. you great luck for you, Thank you. for your company Insurance Samadhan, and I wish quick recovery to your mom as well. Thank you. Thank you so much for coming. Thank you. Thank you.